नाट्यम हमारी मुल्क की तहजीब का एक हिस्सा है। हमारे लोग तो कभी आपको अपनाएंगे नहीं, इस चक्कर में आप अपने लोगों से भी जाएंगे। कतरा कतरों से जब मिल के रहता है तभी दरिया बनता है। अकेली बूंद धूप नहीं सह सकती, भाप बन के फना हो जाती है। हम पर इतनी सारी मुश्किलें हैं लेकिन कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। Hello everybody and welcome to yet another very special episode of Hunar Charcha, and we've of course in the course of this time been Hunar Charcha online, and it's such an honor for me to have with us today the team of Me Raksam. A lot of you have already seen the movie, and it interestingly on a daily basis continues to buzz on social media. It has touched a chord with everyone on some issue or the other, and Me Raksam is that one film which beautifully manages to thread together a lot of issues in our society which are often not spoken about or which are sometimes looked down upon, but it has managed to connect all of them together and put it together in this very beautiful human interest, humane narration of a film. Let me first introduce you to Shabana Azmi ji, legendary actor with us. It is such a huge honor to have you with us. Adab. Thank you very much. Adab. We have the Shukriya, director Adab. of the film, Mr. Baba Azmi, and the Hello. two main leads, the actor Danish Hussain, who plays the father in the film, of the character named Salim, and Aditi Subedi, who's Mariam, who's been so amazing with such a lovely, poignant performance, such a sensitive performance for a girl of her age. Thank you all of you for being with us. Thank you. Thank you. Shabana ji, our first question to you here for Hunar Charcha. As in the beginning of the film, we see that this is a dream of your respected father, Kaifi Azmi Saab, who always wanted a movie to be shot based physically, based and shot in his city, in his village itself. When you heard about the story, the film, the storyline of the film that would be based in his village, how did you feel? I think this question really should be addressed to Baba, because it was Baba's call entirely, and that conversation had taken place between Abba and Baba. So if you would allow me, I would ask Baba to answer that question. And also, I would like to tell you that I'm very happy you're calling it a city, but it's a very little, tiny little village of only 550 people. So it's really, really tiny. Over to you, Baba. Okay, hi. हाँ, ये एक्चुअली वहाँ शूट करना मिजवा में, ये इसमें एक अपने आप में ये एक कहानी है. हम बहुत कम जाया करते थे उस जमाने में, and one of those evenings I was sitting and having a cup of tea with my father Kaifi Saab, and उन्होंने बहुत और उस वक्त मतलब वहाँ पक्की सड़कें नहीं थी, पक्का घर तो कोई नहीं था, हमारा घर बल्कि बन रहा था. अच्छा. हाँ, और उस दौरान उन्होंने जिक्र किया कि बेटे क्या ये मुमकिन हो कि आप मेरे गांव में शूटिंग करें. तो मैंने दिल में तो सोचा इट इज नॉट पॉसिबल. अब्बा कहाँ से कैसे शूटिंग करेंगे, पर अब्बा की वो चीजें हैं, वो इम्पॉसिबल सोचते हैं और वो चीजें होती हैं. तो बहरहाल ये बात मेरे जहन में रह गई थी. एंड इस वक्त जिस साल उनका सेंटेनरी ईयर था, तो मैंने ये कहानी सोची कि मैं वहाँ शूट करूँ, also as a tribute to him, you know. और ये उनकी बात जो थी वो किसी तरह मैं कंप्लीट कर दूं उसको शूट करके. तो मैंने फिर वहाँ डिसाइड किया. हालांकि जब मैंने डिसाइड किया तो काफी सारी कहानियां थी. और when you take a unit of about 70-80 people, तो उसकी अपनी एक फिजिकल रिक्वायरमेंट है. लोग कहाँ रहेंगे, उनका खाना पीना कैसे होगा, और हम कर रहे हैं सर्दियों में, जनवरी में, और इट्स लाइक बाइटिंग कोल्ड देयर, यू नो. तो शुरू में तो मुझे लगा, मैंने डिसाइड तो कर लिया मैं वहाँ
एंड बिलीव मी, मैं जब रेकी पे गया तो क्योंकि वहाँ होटल तो बहुत दूर की बात है, मतलब इवन लॉजेस नहीं। मैं जब रेकी करना मैंने शुरू किया और मैंने वहाँ के लोकल मैनेजर जो मुझे हेल्प कर रहा था उसको बोला, भाई एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पूरे मेरे 70-80 लोग रह सके। Right. तो उन्होंने बोला, सर हम एक काम करते हैं, अलग अलग जगह किसी के घर पे किसी को रिक्वेस्ट करके वहां से एक कमरा। मैंने नहीं, वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि शूटिंग में मतलब सुबह 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, यू नो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। तो बहरहाल मैं थोड़ा सा मायूस होके लौट रहा था वापस, क्योंकि पूरा दिन हम वहां घूमे लेकिन कुछ मिला नहीं। तो मैं मायूस होके वापस आ रहा था घर। ये हमारा जो गांव है वो 2 किलोमीटर अंदर है मेन रोड से, फूलपुर से। एंड बिल्कुल वो रोड के एंट्री पॉइंट में मैंने एक नई बिल्डिंग जैसी देखी। मैंने बोला वो बिल्डिंग मुझे सब खाली लग रही है। मुकेश नाम था लोकल मैनेजर का। तो खाली लग रही, जाके पता तो करें क्या है। एंड ही सेड ठीक है सर, बात करते हैं। और वी वेंट देयर एंड वाकई बिलीव मी, पूरी बिल्डिंग खाली थी। आई मेट द ओनर, आई टोल्ड हिम ऐसा ऐसा। खैर ऐसे भी वहाँ कैफी आदमी का नाम लो तो सारी चीजें हो ही जाती। तो उन्होंने बोला, सर आप बिल्कुल कीजिए शूटिंग, देखिए ये है, ये कमरे हैं, ऐसा है सब अरेंजमेंट, अगर आप इसको आपके लिए ठीक है तो जरूर ले लीजिए। एंड दैट्स हाउ वहां से मेरी हिम्मत बढ़ी कि चलो रहने का जो सबसे बड़ा मसला है वो प्रॉब्लम हो गया, यू नो, फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड एक बार वो हो गया तो एवरीथिंग फेल इन प्लेस एंड इट वाज, आई कुड फील माय फादर्स ब्लेसिंग देयर, यू नो, कि हाँ भाई यहाँ मेरे गांव में मेरे बेटे को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसकी सबकी बात थी। Beautiful. So back to you, Shabana ji, before I go across to Danish and Aditi. आपका first reaction क्या था after? I'm sure you must have, of course, heard the screenplay and the storyline, but after you saw the final product, the final movie, the way the story was presented, the film was shot in this village, which is so close to your heart. I was deeply moved. I was deeply moved. And, you know, being from movies and knowing how it works, I had seen rushes before that. I'd known the story, and yet it had a very deep impact on me. And I just felt that there couldn't have been a better tribute paid to my father in his birth centenary year than this beautiful film, because it encapsulated all the values that Kaifi has always held dear to himself. Not just in the fact that there's a beautiful relationship between a father and daughter, like I had with my father, but apart from that, the many values of a celebration of India's composite culture, her pluralism, respect for the worker, you know, fighting against religious fundamentalism, so many things that come, that you meet fighting of patriarchy. All those values get beautifully interwoven into the film, and I was deeply touched. सलीम की बेटी को उस डांस स्कूल में जाते हुए अपनी आंखों से देखा। जो ये बच्ची कर रही है दुरुस्त नहीं है। मेरी बहन की लाश अब तक ठंडी नहीं हुई और आप उसकी बेटी को नाचने भेज रहे हैं। तवाय बनाने का इरादा है क्या? Beautiful. Danish, to you for the challenges that you faced in portraying a character and being just as convincing, because as the movie is, it is fighting so many issues. It's fighting patriarchy. It's fighting prejudice that comes in from different communities. It's fighting what many want to continue to preserve, which is the Ganga Jamni Tehzeeb. What were the challenges that you faced to continue being equally convincing, the conviction with which these values have been portrayed in the film? See, I think पहली चीज जो ये है कि if you are a storyteller, what is paramount that the integrity of the story should be intact. आपकी बाकी जो भी आपकी जो आइडियोलॉजी है, पॉलिटिक्स है, जो आप बात कहना चाहते हैं, वो सब बाद में आती है.
पहली चीज कहानी खुद है और कहानी की इंटेग्रिटी खुद है, वो इंटैक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज देन इट जस्ट बिकम्स प्रोपेगेंडा। तो जब बाबा ने मुझे स्क्रिप्ट दी और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, वो कहानी अपने आप में कंप्लीट थी। कहानी अपने आप में एक मुकम्मल कहानी थी, बाप की, एक बेटी की, एक लड़की के अरमान हैं जो डांस सीखना चाहती है और दुनिया भर के उसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, और किस तरह से वो ऑब्स्टिकल्स को पार करके फाइनली वो कहानी को जीतती है, वो जंग को जीतती है। तो आई थिंक दैट वाज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। बाकी कि इट हाईलाइट्स द गंगा जमुनी तहजीब और इट हाईलाइट्स द फंडामेंटलिज्म, और ये सब चीजें बाद में है। उसूली चीज है कि कहानी जो है वो अपने आप अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए, और ये कहानी मुकम्मल तौर से अपने पैर पे खड़ी थी। दूसरी चीज ये कि इसको कैसे पोर्ट्रे किया जाए, तो उसके लिए बाबा और मैंने जो है वो फिल्म स्टार्ट होने से पहले हमने उसके ऊपर बहुत टाइम स्पेंड किया। मतलब स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शंस हुए, चर्चा हुआ, बाबा का विजन क्या है उन्होंने मुझे बताया, मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है। So a lot of this brainstorming as to how the character has to be portrayed and how this whole thing has to look on the screen, ये सब pre-production level में हो गया था। तो जब हम वहाँ मिजवा पहुंचे तो हमारे पास पूरी क्लैरिटी थी कि सलीम का कैरेक्टर कैसे होगा, वो किस तरह से परफॉर्म करेगा। बाबा जो है वो पूरी तैयारी के साथ थे कि ये शॉर्ट डिवीजन है, यहाँ पे ऐसे शूट होगा। So I think it was more about rolling up your sleeves and getting on with your job. बाकी जो काम है वो हम लोगों ने पहले कर लिया था। All right. Aditi, the big surprise and the absolute pleasure to all of this has been discovering you as an actor and your performance. You've not performed before, you've not been in front of the camera before. Help us understand your preparation for this, on where this was coming from, the way you have performed so convincingly. ये सब कुछ तो मेरे लिए बहुत ही नया था। मतलब कैमरा के सामने परफॉर्म करना और लाइट्स वगैरह, सेट, सब कुछ मेरे लिए, इतने सारे लोग, सब कुछ नया था। तो ये सब में मुझे बाबा अंकल ने सपोर्ट बहुत किया। एक्टिंग को लेके मुझे एक्टिंग इतनी नहीं आती थी, उन्होंने बोला एक्टिंग मत करो, आप जो नेचुरल कर, मतलब जो जिस तरह से डेली लाइफ आपकी चलती है, आप बोलते हो डायलॉग को, आप उसको अंदर से पी लो डायलॉग को। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक्टिंग में बहुत सपोर्ट किया, और मैं नर्वस भी होती थी, उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया। और ये एक्टिंग, मेरी परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आई तो सिर्फ बाबा अंकल की वजह से। शबाना बुआ के साथ मैंने रिहर्सल की, मतलब हमारे शूटिंग स्टार्ट होने से पहले जब मैं बॉम्बे में थी तो शबाना बुआ के साथ रिहर्सल किया, तन्वी आंटी के साथ रिहर्सल किया, तो सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और सेट पे दानिश सर ने भी बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मतलब हमारे सीन करने से पहले रिहर्सल की। उसके बाद मतलब दानिश सर को मतलब मैं पहले जानती नहीं थी, तो मेरे को थोड़ा मतलब ऐसा होता था कि मैं उनको जानती नहीं, मुझे डर लगता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इतना मतलब भूल गए थे हम सबके साथ, हमारे अतरंगी अतरंगी नाम रखते थे, उसके बाद जोक सुनाते थे। उसके बाद बहुत मजा आता था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम नहीं जानते एक दूसरे को। तो बहुत मजा आया काम करने में। बाबा अंकल का सबसे बड़ा सपोर्ट that you have such exceptional mentors here for the start of your journey. आपके भरतनाट्यम की ट्रेनिंग कैसी रही थी, उसमें क्या एक्सपीरियंस था आपका? भरतनाट्यम के लिए मतलब मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं पता भरतनाट्यम किस तरह से होता है, मुझे लगता था इजी होगा बहुत, मतलब बहुत अगर इजी इसको होगा, पता चलता, अगर इसको पता होता कि कितना मुश्किल है तो शायद वो इतनी आसानी से हाँ नहीं बोलती। 9 घंटे रोज उसको करना पड़ती थी रिहर्सल। तो हाँ बोलो। तो बिल्कुल भी मतलब मुझे मालूम नहीं था कि किस तरह से, तो इतना मतलब इतना मेहनत करना पड़ेगा बोल के मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। जैसे नॉर्मल डांस होता है बॉलीवुड सॉन्ग पे, वैसे ही होगा, तो मैं बोली कर लूंगी मैं, चलेगा। तो फिर बाबा अंकल ने ट्रेनिंग के लिए मुझे मुंबई बुलाया। उसके बाद मेरी 4 महीने ट्रेनिंग चली। उसके बाद मेरी टीचर ने मतलब मुझे बहुत
सपोर्ट किया। और मतलब मुझे नहीं आता था तो मेरे मतलब मैं उनसे बहुत ज्यादा डरती थी, तो मतलब अगर वो आने वाली होती थी तो मैं उनको देख के मतलब गेट पे पहुंचने वाली है क्या बोल के होती थी मैं पहले से, बोले आज अच्छा होगा कि नहीं, आज फिर डांट पड़ेगी। उसके बाद मेरी बहुत सारी चीजें सही नहीं होती थी, मतलब मुद्रा सही नहीं होता तो वो टेप सेलो टेप लगा के रख देती थी, अब ठीक हो जाएगा बोल के, अब सही होगा। Shabana Azmi ji, what do you feel the film does for the presence of Mijwan as a village in terms of the recognition of Mijwan, people's self-esteem? Of course, there's the commendable work that is already going on there at the Mijwan Welfare Center. What do you think the film adds to that in dedicating this form of art, this piece of cinema to the village? You see, I have received a lot of reactions from people saying that Mijwa looks much more prosperous than they had imagined, which makes me extremely happy, because there has been a lot of development work because of the NGO that my father formed there called the Mijwa Welfare Society. And it's very interesting because some of our younger people, when they were watching the film, in fact, Baba's son, said, you know, that sewing center, it looks so out of place in that small village. So I said, but it is in the small village. So, you know, it breaks notions of what you think small villages in India are today. And that, of course, comes because it's like Danish said, it's the story that has been told. But for me, more importantly, what it has done to the aspirations of girls like Aditi in and around Mijwa and many other villages. अब वो अदिति को देखते थे, उनकी शूटिंग होते हुए देखते थे, तो उनको लगता था कि ये तो हम हासिल कर सकते हैं. This is within reach. And because of that, she has become a role model for the girls there. मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि even in the film, it is the younger generation that gives you hope. Because whether it is her cousin or whether they are her friends, they are not concerned about these obscurantist ideas. They are on her side firmly. अब हमारे मुल्क में इतने सारे यंग लोग हैं जिनके पास इतना टैलेंट है, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि वो अपना सपना किस तरह से साकार कर सकते हैं. एंड आई थिंक इस लड़की मरियम की जो सक्सेस है वो उन सब की सक्सेस बन जाती है, और वो सब में हिम्मत आ जाती है कि वो भी फिर से अपना एस्पिरेशन को पूरी तरह से लगान से उसको करें. That I think is a very, very good thing that has happened. Wonderful. Baba Azmi Sahab, as what Shabana ji just said, that this is a huge insight into the village itself, that there is nothing that has been specially or separately constructed for the village. Everything has been shot on how things really are in the village, even if it's about the dance center. And that's really the real picture. That's actually how real the film gets there. You know, वहाँ सेट लगाना ये सारी चीज ये तो पॉसिबल नहीं था, और इसलिए भी नहीं था कि the kind of budget this film has, you know. तो ये बड़ा एक्साइटिंग रहा ये पूरा सफर, और हाउ वी कैन, और क्रिएटिव रहा, बिकॉज जैसे जो मरियम और सलीम का घर है वो एक्चुअली अदिति का घर है, यू नो, तो वो उसी घर में रहती है. जो भरतनाट्यम का है वो हमारा जैसे वो पिलर्स थे, फिर वहाँ कैसे करके उसको थोड़ा सा वो माहौल क्रिएट करते हैं, वो हो गया. नसीर साहब का जो वो टेरेस पे बैठे हुए हैं वो एक्चुअली मेरे रूम के बाहर का टेरेस है ऊपर, तो उसको वहां बन गया आसानी से. तो बड़ा प्रोसेस इंटरेस्टिंग रहा. फिर अब्बा पैदा हुए जहाँ कैफी साहब पैदा हुए, हमने बना दिया. फिर जैसे छोटे गांव में मार्केट होती है, फिर वो मार्केट भी बना दिया, वहाँ एक ऑटो स्टैंड भी बना दिया. तो ये सारी चीजें जी वहां जाके अपने आप ही क्रिएट की चीजें, और होते गई organically. Danish, at any point did you feel, because, and this is specifically talking about the current discourse on several issues that we see in the country, these have become very touchy issues, and
but it's equally important to talk about and raise your voice against some of the prejudices that have seeped in, that we've seen in the past 6 years coming in. At any point, did you feel that as a film giving out a very strong message on these issues, it could have faced a backlash? We probably not sense that right now because of the current pandemic circumstances. It never went for a big cinema, big theater release. तो ऐसे कोई protest नहीं थे कि we are against what is being shown in this film. It is creating unnecessary prejudice. This went on to the OTT platform, and it's still buzzing very appreciatively to all the issues that have been addressed. But did you feel at any point that it could have faced some backlash or the other from any group which felt offended? Well, first of all, when I read the script, और जब बाबा और हम इस फिल्म के बारे में कि इसको कैसे परफॉर्मेंस की जाए, कैसे पेश किया जाए, तो जो एक बहुत बड़ा सबटेक्स्ट था जो हमारे सामने आया, वो ये आया कि जो हालात हैं मुल्क के और जिस तरह की चीजें हो रही हैं और जिस तरह के एजेंडाज हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं और जिस तरह की डिवाइसिवनेस हो रही है, उसका जवाब हम अल्फाज में नहीं देंगे बल्कि सलीम के टेम्परामेंट में देंगे कि जिस तरह से सलीम जो है वो पेश आता है, जो उसका तरीका है कि हम neither we will mince words nor we will be aggressive, but with certain dignity, with certain grace, we will stand by our own belief and our own point, and will persevere to achieve that point. और I think ये sensibility जो है ना वो बहुत हद तक आती है from our elders. You know, when we look at people like Kafi Sahab and Sahir Sahab and Faiz Sahab and Rahi Masoom Raza, तो ये इन लोगों के अंदर एक डिग्निटी थी, एक ग्रेस थी. जब वो अपने मुखालिफ से भी बात करते थे, जब अपने अपोजिशन से भी बात करते थे, तो उसकी बात को काटते वक्त उसकी डिग्निटी पे हमला नहीं करते थे. ये एक बहुत बड़ी बात है, एक ज़र्फ है कि मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता हूँ, आपका एजेंडा है मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ, मैं आपकी पॉलिटिक्स से एग्री नहीं करता हूँ और मैं उसकी दिफा करूंगा. मैं आई विल प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स to counter what you are saying, but while doing that, I will not attack on your dignity. And I think this is what we kept in at the root of what Salim's temperament and behavior will be. कि जो आजकल मुल्क में हो रहा है, हम उसका जवाब देंगे, पर उसका जवाब हम भाषणबाजी करके या बड़े-बड़े डायलॉग्स मार के नहीं देंगे. हम एक डिग्निफाइड तरीके से वो कैरेक्टर कैसे अपनी जिंदगी जी रहा है उस तरह से देंगे. And I thought that was the most befitting way to answer these things. So, immediately everything just fell in place. And all we had to do was to play that character and make the film to that spirit, as close to that spirit as we could. And I think the rest is happening. The film is in itself giving the answer to these things. और ये जहाँ तक ये बात है, भाई हर आदमी को कौन खुश रख सकता है? ये कौन ऐसा जियाला है दुनिया में जो ये दावा कर सकता है कि मुझसे हर आदमी खुश है ना? आप कोई भी बात रखेंगे तो दो आदमी तो आपके मुखालिफ खड़े हो जाएंगे कि नहीं ये बात गलत है. तो that holds true for our film also, that somebody finds something to criticize about it. It's just that nowadays जो दो आदमी खड़े होंगे आपके point of view के खिलाफ, they will stand up far more aggressively and violently. So that was the fear I was actually referring to. Shabana Azmi ji, would you like to say something on this? Do you think I think a tightrope walk? No, I don't think so, because the intention of Mir Aksam was not to divide, but to unite, to make the pluralism and composite strength of India celebrated, rather than point fingers at a particular community. So what Mir Aksam captures beautifully is not that it is one community pitted against the other community. It is a worldview of one kind pitted against a worldview of another kind. So the fundamentalists of both religions on one side against the tolerant, inclusive people of the other religion. So there are extremists in all religions. That to me is very important. नहीं तो ये तू मैं फौरन से बहस
हो जाती है। जब आप उसको उस दायरे में से निकाल के बोले कि भाई ये एक विचारधारा है, ये एक वर्ल्ड व्यू है, एंड वी हैव टू स्टैंड अप एंड बी काउंटेड, which side are we on? Are we on the liberal inclusive side, or are we on the divisive obscurantist side? And therefore, because it doesn't take extreme sides with one particular community, I think it becomes it becomes something that forces you to think rather than just to take an emotional position. Yes, absolutely. Aditi, this has of course been a learning experience for you as far as the art of acting and learning dance and skill and understanding how cinema works and how camera works on scenes and shots in between. Apart from the art of cinema, the subject and the issue and the storyline of the film, how much have you managed to relate to it and also experience it in your own life? रही बात रिश्ते की, तो जैसे जिस तरह से मरियम और उसके अब्बा का रिश्ता है फिल्म में, उसी तरह से मतलब मेरे पापा का भी मेरे साथ रिश्ता है। और मतलब मुझे मेरे मतलब मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी मतलब अपने सपने को पूरा करने से रोका नहीं, मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। तो मतलब इस तरह से मुझे ये आसानी थी कि हाँ मतलब मुझे ऐसा रोकने वाला नहीं है कोई, तो मेरे अब्बा भी उस पर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मतलब कुछ मेरी फैमिली वाले हैं जो मतलब रोक रहे, मतलब बोल रहे हैं कि एक्टिंग क्या करना है, ऐसा बोल के मुझे मतलब मेरे मम्मी पापा से ऐसा बोले। बट उसी तरह से इसमें हमारे फिल्म में भी ऐसा ही है कि हमारे फैमिली वाले मतलब बोल रहे हैं कि नहीं ये सब नहीं करना चाहिए, और मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब जब पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो किसी का डर नहीं होना चाहिए और अपने सपने को पूरा करना चाहिए। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये अदिति जी के बारे में, कि रिसेंटली यही सब हम लोग इन दिनों में हमने बहुत सारे इस तरह से वेबिनार्स किए और जूम पे किए एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं इनसे बात कर रही थी, तो मैंने कहा तो फिर तुम करोगी कैसे? तो शी सेड मैं कैमरा ट्राइपॉड पे रख दूंगी और फिर दीदी को पीछे रखूंगी। और मैंने कहा हेलो। तो बाबा मुझे कहता है एक पूरी फिल्म की है उसने, और वो भी मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, ये सब चीजें तो बहुत समथिंग है। सो शी इज बिकम अ रियल प्रो एट इट, टेकिंग द लाइट एंड नोइंग हाउ टू स्पीक, एंड शी इज परफेक्ट। ये तो छोड़िए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शूटिंग वो बाबा से बकायदा शॉट डिवीजन बात करने लग गई थी कि मेरा क्लोजअप होगा और मेरा मिड शॉट होगा, और एक मेरा नसीर साहब के साथ कॉन्फ्रंटेशन रख के, तो शी वाज स्पीकिंग इन सिनेमा जार्गन। हाँ, मुझे एक दिन आके कहा इसने, बाबा अंकल मेरे को एक फेस ऑफ सीन चाहिए नसीर सर के साथ। तो मैंने ना बेचारे डर जाएंगे, नसीर सर रहने दो, नर्वस हो जाएंगे, डायलॉग भूल जाएंगे। तो इनका कॉन्फिडेंस माशाल्लाह से नहीं। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा अदिति के बारे में। अब अदिति एज एन एक्टर, उसकी ये बातें हैं, सही है कि उसने पहले कभी कैमरे के सामने आई नहीं, परफॉर्म नहीं किया, कुछ नहीं। बट आई होप शी रिटेल्स दैट कि उसमें क्योंकि उसको क्राफ्ट नहीं पता है, तो हर चीज वो यहाँ से करती है। वो डायलॉग सीन्स लेके बिल्कुल उसको पी लेती है, डायलॉग्स याद कर लेती है अच्छी तरह से। एंड नॉट ओनली वो सीन, पूरी स्क्रिप्ट उसको जबानी याद है कि ये सीन के बाद ये सीन के, बल्कि मैं कभी भूल ही जाता था कि आदत ये सीन के बाद क्या आने वाला है, तो बोले वो सीन आने वाला है। अच्छा, सो और यही उसकी ताकत मुझे लगती है इस वक्त ऐसा है कि वो, क्योंकि जब आप क्राफ्ट सीख लेते हो तो क्राफ्ट में या तो आप में वो मैच्योरिटी हो कि उसको बहुत अच्छी तरह यूज करें, वरना वो आप डिसाइड कर लेते हो कि अच्छा ये लाइन में मैं थोड़ा ऊंचा बोलूं, इसको थोड़ा कम कर दूं, यहाँ थोड़ा पॉज ले लूं, ये सारी चीजें। तो इसमें जो ये इतना उभर के आई है वो उसकी स्पॉन्टेनिटी, और वो क्रेडिट उसी का। Wonderful. Baba Saheb, अगर हम दूसरे characters की बात करें on how each of them have played their own little role in adding to the larger narrative, be it Aditi's cousins on how they're silently helping her,
understanding prejudices that exist in their own homes as well, or even the role of the auto rickshaw boy on how he gets business to Salim, for supporting his shop, for supporting his tailoring. ये बहुत खूबसूरती से आपने with great subtlety you've brought everything together. How did you manage that? मुझे ये मेरा बिलीफ है और ये आज भी मैं मानता हूँ इस बात को, एंड आप जरूर इस पे आप ये बोल सकते हैं कि नहीं, बट एक सर्टेन लॉबी है जो इसके खिलाफ होते जा रही है, बट मेरा ये मानना है कि जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, वो एक्चुअली स्पॉन्टेनियस सिचुएशन पे करते, तो अगर वो थोड़ा बैग भी जाए तो उनको डीप रूटेड हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता है कि हम कहाँ से आए हैं, यू नो, तो ये माहौल मतलब आप उनको प्रोवोक कर सकते हैं। तो जो इस फिल्म में जो यंगस्टर्स हैं, जो जिस माइंडसेट के साथ आए, उनको फर्क नहीं पड़ता। हाशिम सेठ से वो डरते हैं कि भाई एक हाशिम सेठ है, ये गांव में जो चाहे वो कर सकते हैं, बट उनकी थिंकिंग क्या है वो सही है, पॉलिटिकल व्यूज माइंड में नहीं है। दे जस्ट फील कि भैया जैसे कुलसुम जो है ना, एहसन हु प्लेड कुलसुम, इसकी कजन मरियम की, वो अपने घर में, अब वो अपनी माँ से डरती भी है, पलट के जवाब भी नहीं देती, बिकॉज द मदर इज डोमिनेटिंग। लेकिन एक पॉइंट आता है, शी ऑल्सो लूजेस इट, व्हाट इज योर बिग प्रॉब्लम यार, ये भरतनाट्यम से, यू नो, और उसके एज इट इज वो लोग इतने परेशान हैं, वी आर फैमिली, हम सपोर्ट करना चाहिए, तो आप उसके खिलाफ हो जाते हैं। यू नो, एक सीन है हमारी फिल्म में, तो मुझे लगता है कि ये जो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे अशफाक का रिक्शा पुलर जो है, अब वो आके सलीम के साथ जो उसका रिश्ता बना हुआ है, और वो अपना काम भी कर लेता है, और उसको बहुत अच्छी तरह चाम करके फ्री में करा लेता है, कभी नहीं पैसे होते हैं, तो ये बनते बनते ये दे आर एक्सटेंशंस ऑफ दिस माइंडसेट, यू नो, एंड मैं यही मानता हूँ कि जो यूथ है उनको इतना डीप रूटेड वो नहीं है, नॉलेज नहीं है, या फेवरेटिज्म्स नहीं है, और ये सारी चीजें, जैसे मैं इवन टॉकिंग अबाउट नसीर, इफ आई से, क्योंकि जब नसीर से बात हुई, जब उन्होंने वो स्क्रिप्ट को देखा, और ये फिर हम लोग गेटअप पे बात कर रहे थे कि भाई क्या पिच है क्या नहीं है, तो नसीर ने कहा मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि ऐसी दाढ़ी जो ऐसा लगा लूँ, ये पहन लूँ, ये सारी चीज। तो उस दौरान भी मुझे याद है, मैंने कहा नसीर एक चीज है कि जो हाशिम सेठ है, ये स्कॉलर आदमी, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत डिग्निफाइड, और बस उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग है, उससे हम एग्री नहीं करते। वो एक कंजर्वेटिव अंडरस्टैंडिंग की है, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा, जाहिल आदमी नहीं है, यू नो, he can be a Islamic scholar kind, but वो कैसा इंटरप्रेट करते हैं अपनी नॉलेज को, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारे नोट्स जो हैं, सुर जो हैं, ये I mean you give them as a director, and then of course the actors just, I mean they're all great actors, so they've done a super job. गैर मजहबी काम करते हैं और फिर मस्जिद भी चले आते हैं। हमारा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि एक बच्ची की डांस करने पर उसकी तौहीन हो जाए। Shabana ji, how do you think the OTT platform has added to the discussion and discourse on the film? Because considering the circumstances under which it's been released in the midst of the pandemic here, do you think that this is going to become now the new normal of really looking away from the big screen and cinema releases here, even after we start opening up, even after a course of recovery, OTT would tend to become stronger in the coming days? Do you think this is a paradigm shift of what you're witnessing as someone who's belonged to the industry for so many decades? You know, I think the OTT has come here to stay. And the big service that the OTT has done is because it doesn't need to cater to the lowest common denominator, which the mainstream film does. You whitewash all the details of a mainstream film because you want it to be available from a rickshaw driver
to a doctor. Everybody should be able to relate, because the more the number of people who see your film, the more successful the film is. So it requires a certain dumbing down. In the OTT platform, because the film is available for such a long time and it has so much time to recover the money that has been put into it, that those constraints are not there, and so content becomes king. It is all about content. So all the new content that you are seeing, so many new actors you are seeing, you're seeing new technicians, you're seeing new writers, all these are available on the OTT platform. And that, I think, for a film like Me Raksam, it was a blessing, because at the click of one button, you're able to stream it in 192 countries. I had so many friends and so many relatives saying, oh my God, imagine we will be able to see it at the same time as you. Otherwise, pata nahi kab ye release hoti, kahan hoti, kitne tukdon mein hoti hai, when we would get to watch it. Having said that, as somebody who has come from cinema, I would think that it is important to say that the magic of the big screen will not go away. So I don't think it will become an either or situation. I think it will become and this and that, which is healthy, because that gives you so much more content. So for this kind of film, for a Me Raksam kind of film, is the best thing that could have happened. All right. And Danish, for you too, because if I ask about films in theatre both now, which are available on OTT platforms, the theatre performances also that are now being put on OTT platforms for a viewer sitting at home, and there is no distinction in that line of that experience of going to a cinema hall or that experience to going to an auditorium for watching a theatre play. आप घर पे बैठ के आप theatre देखें या series देखें, episodes देखें या proper movie देखें, it's all the same. You're sitting at home and watching that from your laptop, your mobile phone. Is that a loss? हाँ, लॉस तो है ही, क्योंकि जो एक ह्यूमन इमीडिएसी का एक जो चार्म है और जो उसका मैजिक है, वो तो आप स्क्रीन पे नहीं क्रिएट कर सकते. मैं अगर कल मान लीजिए ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ जाए कि लोगों के पास 3D होलोग्राम्स में थिएटर अपने घर पे देख सकें, तो तब भी जो लाइव एक्टर बैठ के आपके सामने कर रहा है वो तो इरिप्लेसेबल है. तो ये बात सही है, जैसे कि शबाना ने कहा कि OTTs are here and they are here to stay. लेकिन थिएटर गायब नहीं होगा, neither cinema halls nor theater. Once we find ourselves in a position where we can reopen them, they will reopen. बस आप यही समझिए कि अभी रमजान चल रहा है, तो रोजे हैं, तो हम लोग क्या करें, जो हमें सहर और सहरी और जो हमको ये मिल जाती है, तो उसके ऊपर इफ्तार लैपटॉप पे वो ले लेते हैं. लेकिन जब ईद आएगी तो सब जाएंगे बाजार में, तो सिनेमा हॉल में जाके भी देखेंगे लोग और थिएटर में जाके नाटक भी देखेंगे. बिकॉज वो देखिए, वॉचिंग ऑन अ बिग स्क्रीन, वो उसको आप रिप्लेस ही नहीं कर सकते. तो और सिमिलरली द मैजिक ऑफ वॉचिंग अ लाइव एक्टर ऑन स्टेज, वो रिप्लेस ही नहीं हो सकता है, आप कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी ले आइए. तो अभी और जितना देर तक ये डिले होगा, मान लीजिए साल भर लगता है सिनेमा हॉल और थिएटर खुलने में, 1.5 साल लगता है, तो लोग और स्टार्व होंगे. तो जब वो खुलेगा फिर तो आप देखिएगा पैक्ड, वो जैसे पुराने जमाने में होता था ना, 5-5 हफ्ते हाउसफुल जा रही है. आई वोंट बी सरप्राइज्ड दैट पेंट अप डिमांड निकले और लोग वापस जाके सिनेमा हॉल में और सब वही पिक्चरें देखें और थिएटर में जाके देखें. Absolutely. So this is my final question. काफी वक्त आपने हमारे साथ गुजारा. Final question to Baba Sahab, and then just one tiny last question to Aditi. Baba Sahab, this is along the same lines. If I ask you this question differently, what have you learned from OTT with your film going to this platform? देखिए, OTT का जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है कि जैसे शबाना ने कहा कि द क्लिक ऑफ वन बटन 190 कंट्रीज में आप देख सकते हैं जी. एंड ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एडवांटेज OTT का. इसके अलावा अगर हम
OTT को फिल्म थिएटर से कंपेयर करें तो फिल्म थिएटर का एडवांटेज ये है कि जब आप उसमें जाते हो थिएटर में, ऑडिटोरियम में 1.5-2 घंटे के लिए वहां बैठे हो, तो यू आर टोटली इन दैट वर्ल्ड ऑफ द फिल्म, ऑफ द नैरेटिव, यू नो। फिर उसका एक अपना एक अंधेरा है पूरी जगह, और सिर्फ स्क्रीन लिटा पे, उस स्क्रीन पे कहानी आप देख रहे हैं, उसके साउंड इफेक्ट्स हैं, उसका जो माहौल क्रिएट हुआ है, उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो। एंड देखिए है क्या कि जो नैरेटिव है, मतलब चाहे वो मतलब कैसे भी आए, कोई भी कहानी हो, मेरा कहने का तो आपका एज अ फिल्म मेकर आपकी कोशिश ये होती है कि आप ऑडियंस को इन्वॉल्व कर लो उसमें, भले वो आपको पसंद आए ना आए, वो बात की बात है। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो मुझे लगता है कि थिएटर में जो मिलता है वो ये आपके टीवी पे और आपके आईपैड और लैपटॉप पे शायद उतना ना मिलता हो, बिकॉज आप अपने घर में बैठे हुए हैं, स्टडी पे बैठे हुए हैं, कोई गाड़ी में ट्रैवल करते आईपैड पे देख रहा है, तो कई चीजें साथ में हो रही, तो यू कांट गेट टोटली इन्वॉल्व इन दैट। आई मीन दिस इज माय व्यू एंड यू नो, एंड मुझे लगता है डेफिनेटली अदरवाइज ओटीटी इज अ डैम गुड प्लेटफॉर्म बिकॉज इट कैन रीच, उसकी रीच बहुत बड़ी है और एक साथ है। राइट, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो अदिति, आपको कहाँ से रिस्पॉन्सेज मिले अपनी परफॉर्मेंस के लिए, ओटीटी के आउटरीच रीच को मद्देनजर रखते हुए, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड फ्रॉम अक्रॉस, वेयर ऑल हैव यू रिसीव्ड देम? मतलब यहाँ अपने गांव से भी बहुत सारे लोग, मतलब शिबाना बुआ ने हमारे गांव में भी लगवाया था पिक्चर, हमारी स्क्रीनिंग करवाई थी। तो हमारे लोग, गांव के लोग भी आके मुझे बहुत मतलब तारीफ किए गए, बहुत अच्छा फिल्म है, बहुत अच्छा डांस किया, रुला दिया बोल के, मतलब बहुत सारी तारीफ हुई। उसके बाद नेपाल से बहुत सारे लोगों का रिस्पांस आया और मुंबई से भी बहुत सारे लोगों का रिस्पांस आया जो बाबा अंकल शिबाना बुआ के जरिए मुझे मिला देखने को। तो मतलब हमारे यहाँ, हम यहाँ थिएटर में अगर रिलीज तो हम नहीं देख पाते हमारे गांव में, तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुआ है तो हम सब लोग देख पा रहे हैं अपने जगह पे। और हाँ, lovely, wonderful. On that beautiful note, it is a wrap on the Hunar Charcha, and thank you so much for all of you for being with us. Congratulations once again with Mir Aksam, and God. Okay, let me tell you. One second. Let me tell you that you know, Mir Aksam has been selected to be the opening night film at COSAFF, which is eight cities have come together in the USA. Wow. to have a virtual film festival, and Mir Aksam is the opening film and E Bale Oo is the closing film. So I mean, it's really a huge honor. Then even in Dublin, in the Ireland Film Festival also, it has been it's going to be the opening night. And you know, it's such a struggle for filmmakers to get their film to be the opening night, and this has just fallen in Baba's lap. So at the moment, we are all very, very wonderful. Happy. Congratulations. And how we say in the newsroom lingo, this is breaking news that you've given us about Mir Aksam. Great. Thank you so much, all of you. Thank you. Absolute pleasure. It's such a warm-hearted conversation.